Singh International Cricket Stadium at Mullapur. Here, Mumbai versus Baroda is the match which is coming up. Well, Baroda have won the toss and have chosen to bowl. Two teams, Mumbai of course being led by the seasoned Ajinkya Rahane. Some very promising names, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, Prasad Pawar, the wicketkeeper. Jay Bisra comes back to Mumbai after a season with Uttarakhand. And then the bowling you can see Shams Mulani and Tanush Kotian. And all in all, Baroda, of course, they would like to chase. That's why Krunal Pandya had no hesitation whatsoever in opting to bowl. यशस्वी जायसवाल 69 मैच 2044 रन 124 सर्वश्रेष्ठ है उनका, 2 शतक 12 अर्धशतक। तो आंकड़े बताते हैं किस तरह के वो बल्लेबाज हैं। जया बेस्टा 33 मैच है 1001 रन है, 136 का स्ट्राइक रेट है। शोएब टॉपर है, 7 मैच में 3 विकेट हैं। नया मैदान है, नई विकेट है और ये पहला लाइव टेलीकास्ट है यहां से इस सीजन का। फिर से अपील हो रहे हैं यहाँ पर, क्या उंगली उठेगी? उठ जाएगी, लग रहा था बिल्कुल सामने पाया है। अपील हुई जोरदार और मैं पहले भी किशोर जिक्र कर रहा था, गेंदें उठ नहीं रही उतनी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, उसका नुकसान हुआ यहाँ पर। Yes, Mumbai losing an early wicket. Jay Bisra back in the Mumbai side. So that's the end of Jay Bisra. Leg before to Shoaib without opening his account. Mumbai 1 for 1. In walks the Mumbai captain, no stranger to a crisis. Look at that record. Awesome. 6,128 runs. And Ajinkya does the best thing. Drive straight. You really cannot set a feel for that. 4 runs. लीजिए, इस बार बिल्कुल बॉलर के ऊपर से खेला है, पहला छक्का आता हुआ। फिर से लेग स्टंप के ऊपर एक गेंद, लीजिए एक और विकेट, एक और विकेट। लग रहा था ये गेंद थोड़ा सा लेग स्टंप पे, लेकिन लेग और स्टंप के ऊपर एक गेंद थी। अंपायर ने थोड़ा सा समय लिया, सोचा और उसके बाद अपनी उंगली उठा दी। The Mumbai skipper, he was batting so well. Unfortunately, will have to depart for a figure which many consider inauspicious, unlucky. 13 of 11 balls, and it's 15 for 2 Mumbai. हार्दिक तमोरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में क्या ये जो दबाव उसको कम कर पाएंगे? 4 मैच हैं, 39 रन, 19 सर्वश्रेष्ठ, कोई बहुत ज्यादा रन उनके झोली में है नहीं। Oh, and that's a boundary. लीजिए, आते ही फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन ठीक उसके ऊपर से इस शॉट को खेला है तमोरे ने और छक्के के साथ वेलकम किया पिथैया का। फिर से लेग स्टंप के ऊपर एक गेंद थी। जायसवाल इंतजार कर रहे थे कब मेरे को मौका मिलेगा अपना हाथ खोलने का, और एक और छक्का। गेंद हवा में है और शोएब ने कहा भी एक विकेट और लेना है क्योंकि मेरे ओवर खत्म होने वाले हैं। तीसरा विकेट उनको मिलता हुआ। तारीफ करनी होगी विष्णु सोलंकी की, जिस तरह वो गेंद पर नजर बनाए और आगे दौड़े और ड्रॉप होते होते उससे पहले उन्होंने अपने ग्लव्स में उस गेंद को रोका और वापसी कराई जायसवाल की। जायसवाल 8 रन पर आउट हुए हैं। मुंबई 38 3 विकेट पर। 104 innings, 2,102 runs. Good strike rate, very encouraging strike rate, 139. That's in the slot and that's been lofted high and over the fence. Reverse sweep. There goes the finger. Wrong shot selection to a bowler who's so accurate. Bowls that ball that came in with the arm. And he went for a wrong shot and paid a very heavy penalty. And there goes wicket number 4. He would be a man who can make a mincemeat of the bowlers. The 74th innings, 1,155 runs. Good strike rate of a 128. Abhimanyu Singh, and this past the fielder. Welcome boundary for Mumbai. This time taking the aerial route, and he clears it as well. And this time the wrong line.
And a boundary. Shivam Dube gets past the fielder, and once he does, that's 4 runs. And Shivam, will he get maximum? Yes, a parallel 6 there. दोनों बैट्समैन खुलकर खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर गेंदबाज के पास अनुभव नहीं है तो उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। पीछे हटे, पुल किया, कोई मौका किसी फील्डर के लिए नहीं। पीछे हटे, ड्राइव खेला है, फील्डर पीछे है, जी लीजिए। इस साझेदारी को तोड़ने का काम कर दिया अभिमन्यु ने। And Mumbai lose their 5th wicket at 119. Shams Mulani, be it with bat or ball, maybe more with ball, he's always risen to the occasion. Shivam Dube goes big. This is what Mumbai would want from him. पुल किया है, फील्डर पीछे है, फिर से दूसरा विकेट उसी एरिया में, लगभग उसी। अच्छा रनिंग कैच लिया यहाँ पर। शिवम दुबे की पारी का अंत हुआ है। मुंबई को लगा एक और झटका। Vital stage. Mumbai lose Shivam Dube for 48. Fine knock. 36 balls. Mumbai 137 for 6. 3 मैचों में 34 रन बनाए हैं। Oh, this time that's a very useful shot. Will beat the fielder. Yes, it does. 4 runs, 4 useful runs. Oh, trying to go for a cheeky shot there, paying the price. Shams Mulani, he would be disappointed. The second batter in the innings to be dismissed in this fashion. Shams Mulani bowled by Lukman Meriwala for 8. Mumbai 147 for 7. 9 इनिंग में 61 रन है, 28 अवशिष्ट है। अनुज कोठियान पहला रन तेजी से किया, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जोखिम तो लिया ही है, आउट हो जाएंगे। यहाँ वापस ही जाना होगा। Well, Mumbai not getting the boundaries in the final over, thanks to a splendid spell of bowling by Lukman Meriwala. The run out there, and Mumbai finish on 148 for 8 in the stipulated 20 overs. The target for Baroda, just a run shy of 150. Jyotsnil Singh, quite new, 178 runs in 9 innings. Nadrathwa, slightly more experienced, 246 runs in 21 innings. Dhaval Kulkarni, look at that, 154 wickets, 162 matches. And what a fine extra cover drive. And this has taken the aerial route. Just 2 fielders outside the 30-yard cordon. फील्डर मौजूद थे, दोनों फील्डर मौजूद है, दोनों के बीच में से गेंद को निकाला। Oh, that's the first wicket down there, providing a breakthrough, immediately coming on Awasthi there. And Mumbai get the much needed breakthrough. राठवा जा रहे हैं वापस, 11 रन बनाए उन्होंने। Abhimanyu Singh Rajput, he's come out. And this beats the fielder there. Oh, this time once again to the right. That's beautifully played off his hips. And this time finds the gap to the left of the fielder at point. Here is Jyotsnil has decided to take the spinner on. Back-to-back boundaries. बेहतरीन शॉट, गेंद के बिल्कुल पीछे आए, ड्राइव किया, डीप पे फील्डर है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। एक और बाउंड्री आ गई। बड़ा शॉट यहां पर आता हुआ ओवर की आखिरी गेंद पर। And bowled him. The first delivery, and look at what happened. Good use of the seam there. No footwork at all. Stranded.
caught in the crease. So well, just nil after scoring those 34 runs off 25 deliveries, bowled Mohit. 64 for 2. Krunal Pandya, 150 innings, 2,516 runs with a good strike rate which is required at this moment. 132, 850 is in that. और बीच बीच में जब मौका मिले तो गेंद का छोर बदल दें, उसको एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ भेजा है इस बार। कदमों का इस्तेमाल किया है, फील्डर नीचे है। ये लीजिए, एक और सफलता यहां पर मिल गई। अभी मैं इस बात की चर्चा ही कर रहा था, आम गेंद था ये, अंदर की तरफ आया। डीप में मौजूद थे दुबे, जिन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा। अभिमन्यु राजपूत ने बनाया 27-21 गेंदों में 77, 3 विकेट पर। 53 innings, 1,151 runs, and this strike rate is required at this point of time. 122, 650s in that. ये लाइन सही नहीं है और बल्लेबाज ने उसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि गेंद आप लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं। Good variation. Oh, this could be close. This could be close. Maybe just what Mumbai were looking for. Quick single. Oh, and the stumps being broken there, and and there comes the signal. Krunal Pandya will have to make that long walk back. शिवालिक शर्मा आए हैं, 6 innings, 96 रन। विड्थ ऑफर की और धुआंधार स्ट्राइक उस पर, शानदार शॉट, शानदार दमदार शॉट खेला है, कोई जवाब नहीं शॉट का। फिर विड्थ ऑफर की और फिर बैट्समैन ने इस पर एक जोरदार शॉट खेला है, कोई मौका नहीं है खिलाड़ी के पास वहां पर। Once again going round the wicket, and he's getting on out. बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर थी, लेकिन ऐसा लगा कि जिस तरह का वो स्ट्रोक खेलने के, कहीं कोई महीन बिल्कुल एक छोटा सा ग्लव्स के ऊपर से गेंद रगड़ खाकर गई है, ऐसा कुछ लगा, और अंपायर ने शिवालिक को आउट दे दिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है। विकेट कीपर प्रसाद ने उनको विकेट के पीछे दबोचा। कोटियान की गेंद पर सिर्फ 5 रन 6 गेंदों पर, 324 रन 21 इनिंग्स में, लेकिन स्ट्राइक रेट जैसा मैं बता रहा था 126, उसमें एक अर्धशतक भी है। Oh, this has gone aerial. Will it go to hand? Oh, it's clear the distance. ऑस्टम के ऊपर थी, बैकफुट पे गए, गेंद को प्लेस किया, डीप में फील्डर मौजूद हैं, लेकिन दर्शक बने रह गए। एक और बाउंड्री आ गई ओवर की आखिरी गेंद पर। शॉर्ट गेंद थी, इस बार थोड़ा सा खराब गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर बहुत ज्यादा बाहर थी, और इस बार थोड़ा यस नो ये फिर से गया, लगता है एक और विकेट चला गया। Mumbai doing well. Their fielding coming to the fore. Good pick up and throw on the run, and the wicket keeper does the rest. Very unfortunately for Baroda. Remember, they lost in the league phase to Mumbai as well by a slender margin of 3 runs. ध्रुव पटेल 8वीं पारियों में 23 उनका सर्वश्रेष्ठ है, 100 टोटल जमा पूंजी है, 100 रन की उनके पास। लेग स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, पुल किया है, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। इस एक शॉट से जीत लगभग निश्चित होती हुई बरोड़ा की। Oh, he's bowled him. A perfect Yorker there with the scores level. Tushar Deshpande produces a gem of a delivery to send back Dhruv Patel. Dhruv Patel bowled by Deshpande for 6. Baroda 148 for 7. Impact player कार्तिक काकड़े। डायरेक्ट थ्रो की कोशिश की थी, लेकिन ये रन हुआ है और जीत अपने नाम। सोलंकी हालांकि 49 पर अविजित हैं, लेकिन खुश हैं क्योंकि उन्होंने वो काम किया है जिसकी टीम को जरूरत थी। 149 रन बने हैं 7 विकेट पर, 49 इसमें सोलंकी के हैं।
शानदार जीत दर्ज की है, 3 विकेट से जीत दिलाई है बड़ौदा को। So this is how the match panned out. Mumbai restricted to 148. भाई पहले तो मैं आप सभी को कह देता हूं कि अगर आपको पूरी हाईलाइट की वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि ना आपको जरूरत है हाईलाइटों की। सो गाइस सबसे पहले तो बात करें तो भाई सौराष्ट्र और बड़ौदा का मैच हुआ था और भाई लिटरली क्या धोया है सौराष्ट्र ने। अगर बात करें तो भाई एक वक्त पर लग रहा था कि सौराष्ट्र क्या करेगी, लेकिन भाई हार्दिक देसाई, उसके बाद भाई बात करें तो रुचित आहिर और जय गोहिल की जो पार्टनरशिप हुई भाई, उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते भाई अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट को 266 में सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट गंवाकर पहुंचा दिया। उसमें अगर बात करें तो भाई क्या हुआ था, तो इंडोर स्टेडियम में मैच हुआ था। उसके बाद भाई बात करें तो सबसे पहले सौराष्ट्र टॉस जीती है। हालांकि उन्होंने टॉस तो जीता, लेकिन टॉस के साथ उन्होंने पहले बैटिंग चूज करने का निर्णय किया और उनको लगा था कि शायद अगर बैटिंग पर ज्यादा स्कोर बना देंगे तो भाई ये टीम कुछ इतना उखाड़ नहीं पाएगी, और भाई ऐसा ही हुआ। और वहां पर हार्दिक पांड्या की भी कमी महसूस हुई थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस मैच में हार्दिक पांड्या यानी कि भाई कुंफू पांड्या थे, उस मैच को आसानी से जीत जाती थी। लेकिन भाई जिस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं होते थे उसमें पता नहीं कौन सी लॉल हो जाती थी और पूरा का पूरा मैच हार जाते। ऐसा ही भाई हुआ लिटरली। अगर हम बात करें तो पहले तो हार्दिक देसाई की 76 रन की एक बेहतरीन पारी आती है सिर्फ और सिर्फ 39 बॉलों में। और भाई उसके बाद बात करें तो भाई रुचित आहिर की भी एक अच्छी पारी आती है 30 बॉलों में भाई 57 रन बंदा ठोक के चला जाता है। उसके बाद भाई जय गोहिल वो भी भाई 53 रन बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ 18 बॉलों में। मतलब भाई रिंकू सिंह का भी रिकॉर्ड बंदे ने तोड़ दिया और भाई एक अच्छा कैमियो खेल के जाता है, जिसके चलते भाई 266 रनों का टारगेट रखता है बड़ौदा के सामने। और भाई बड़ौदा जब उतरती है तो भाई सारे विकेट ऐसे चल रहे थे कि भाई कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उससे पहले बात करें तो भाई सौराष्ट्र बैटिंग करने के लिए आती है, तभी गाइस वहां पर कृणाल पांड्या की बहुत ही ज्यादा पिटाई होती है बंदे की। भाई 14.75 की इकोनॉमी बंदा 4 ओवरों में देता है और भाई 59 रन यानी कि 60 रन दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 ओवरों में। उसके बाद भाई बात करें तो एल मेरीवाला की अच्छी इकोनॉमी के साथ भाई सारे के सारे जितने भी बड़ौदा के प्लेयर थे सारे इकोनॉमी भाई पांचों की इकोनॉमी भाई 10 से ऊपर की थी। उसके बाद भाई बात करें तो वहां पर एल मेरीवाला 2 विकेट अपने नाम करते। उसके बाद भाई ए शेठ अपने नाम 3 विकेट करते। उसके बाद भाई अगर बात करें तो कृणाल पांड्या बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जब खेलने के लिए आती है बड़ौदा की टीम चेज करने के लिए, तभी भाई बहुत ही अच्छा कैमियो खेल के जाता है। बंदा 29 रन बनाता है सिर्फ और सिर्फ 16 बॉलों में। और भाई अगर उसके बाद बात करें तो जयदेव उनादकर ने 1 विकेट अपने नाम किया है, जो सौराष्ट्र टीम के कैप्टन भी थे। उसके बाद भाई बात करें तो ए पनवर ने भी 3 विकेट लिए। उसके बाद डी जाडेजा ने भी 2 विकेट। उसके बाद भाई पता नहीं बड़ौदा वालों को क्या हो जाता है, भाई उतने रन भी थे नहीं, मतलब कि रन तो भाई बहुत थे, लेकिन अगर बात करें तो चेस भी कर सकते थे अगर वहां पर पार्टनरशिप होती और कुंफू पांड्या होते तो। लेकिन गाइस अगर दूसरी ओर बात करें तो 188 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। मतलब कि भाई वो ज्यादा कैमियो की तरह खेलने जाते तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि भाई विकेट उतनी बची नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट बची थी और 2 विकेट मतलब कि गेम खलास हो गया था। उसके बाद भाई 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 188 रन बना पाई और भाई बस मैच हार गई। और अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई नमन धीर भाई एक ऑलराउंडर अभी तो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बात करें तो भाई हैदराबाद वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था और उसमें उस बंदे ने भाई अपने नाम 5 पर होल किया है। मतलब कि भाई बंदे ने अभी तो फिलहाल एमआई ने उसे रिटेन कर लिया और मुझे लगता है कि आरटीएम का यूज करके भी उसको ले लिया। लेकिन भाई बंदे ने कैमियो क्या खेला था, मतलब कि भाई एक वक्त पर लग रहा था कि भाई क्या उखाड़ पाएगा नमनदीर। और भाई नमनदीर जो एक टेल एंडर होके, टेल एंडर तो नहीं था, मतलब कि भाई एक ऑलराउंडर होके बंदे ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि भाई पूरी की पूरी टीम पंजाब की लथड़ गई थी। वैसे गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ताकि आपको ऐसी हाईलाइट की वीडियो चाहिए तो भाई आप कमेंट कीजिए ताकि हम भी हाईलाइट लाए। मतलब आप देखते तो हो नहीं तो भाई हम हाईलाइट ला के क्या करें। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और भाई मैं तो अभी बहुत ही तगड़े चल रहे हैं।